नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका के सबसे वजनी ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को ले जाने वाला हिंदुस्तान का हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3M6 शॉर्ट रेंज से कामयाबी के साथ रवाना। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। बीस साल बाद साथ आए ठाकुर बरादरान। शिवसेना, UBT और मनसे के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान। BMC इंतखाबात में BJP को लग सकता है झटका। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश और केरला समेत 4 रियासतों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। लाखों नाम हटा दिए गए। जामिया मिलिया इस्लामिया में नया तनाज़ा। इम्तिहान में हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम का सवाल शामिल करने पर फ़िरक़ा परस्तों का हंगामा। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मुअत्तल। आसाम के इलाके अंगलोंग में बदतरीन तशद्दुद, 2 हलाक, 40 पुलिस जवानों समेत 50 से ज़ायद जख्मी। बिस्वा शर्मा ने अमन की अपील। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान का भारी भरकम रॉकेट LVM-3M6 जिसे बाहुबली का नाम दिया गया है, अमेरिका वाक़े AST मोबाइल स्पेस के जदीद मवासिलाती सेटेलाइट ब्लूबर्ड 6 के साथ आज सुबह शॉर्ट रेंज से रवाना हुआ। 24 घंटे की कामयाब उल्टी गिनती के बाद मुकामी तौर पर तैयार इस रॉकेट ने दूसरे लॉन्च पैड से मुकर्रर वक्त यानी 8:54 बजे शानदार अंदाज में परवाज़ की। मुकर्रर वक्त से 15 मिनट कबल खुदकार लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के बाद रॉकेट ने ऐन वक्त पर नारंगी धुएं के गुबार के साथ परवाज़ की, जिससे ज़मीन लरज़ उठी। इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लिफ्ट ऑफ LVM-3M6 STSCSHR से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 खलाई जहाज़ को कामयाबी से लॉन्च किया गया। तकरीबन 16 मिनट की परवाज़ के बाद ये सेटेलाइट, जो NIS से सेटेलाइट के बाद अमेरिका का दूसरा मिशन है, 520 डिग्री केसेस के साथ ऑर्बिट में कायम हो जाएगा। ये अब तक हिंदुस्तानी सरजमीन से लॉन्च किया जाने वाला सबसे वजनी सेटेलाइट है। इसरो के सरबराह और दीगर साइंसदानों ने इस लॉन्च को एक तारीखी कामयाबी करार दिया। Launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb
missions and CMS-3 satellites this has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion we have got. This is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. With this mission, India has successfully launched 434 satellites for 34 countries. In today's mission, as I told, all the vehicle systems have performed extremely well. We have also, for the first time, inducted electromechanical actuation control system for the S-200, which is also successfully demonstrated for the first time. This gives us great confidence for the Gaganyaan program. And this achievement is because of the guidance, mentorship given by our elders, the robust review mechanism, hard and smart work of every Department of Space team members, our industrial partners, academia, for their outstanding contribution. On this occasion, let me also thank our mentors for the strong foundation made for us to stand great and accomplish this type of great missions. Also, let me take the opportunity to thank MSAST Space Mobile for having great confidence on Indian launcher and giving this opportunity for accomplishing this great feat. इसरो की इस तारीखी सास कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न का माहौल पाया जाता है। सर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन ने इस कामयाब लॉन्च पर इसरो के सरबराह और इस मिशन का हिस्सा बनने वाले साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। उद्धव ठाकरे और राज ठाकुर ने शिव तीरथ पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का ऐलान किया। दोनों पार्टियों के लीडरान का ख्याल है कि इसके साथ ही एक तारीखी बाब का आगाज हो गया है। वाज़ेह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के इत्तेहाद के साथ शिवसेना यूबीटी के लीडरान ने ख्वाहिश जाहिर की कि कांग्रेस भी इनके साथ आए और शरद पवार भी उनके साथ रहें। संजय रावत ने कहा कि इत्तेहाद या अजीम इत्तेहाद में हर बार मनचाही चीज़ नहीं मिलती, शख्सियत की मोहब्बत में बड़े बगैर नशिस्तों की तकसीम करनी होती है। जो जीत सकता है इसे नशिस्त मिले, इसी बुनियाद पर नशिस्तों की तकसीम तय की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार अलजायर में SIR यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरे नजरसानी के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 42,74,000 नाम हटा दिए गए, जबकि छत्तीसगढ़ में मजमूई तौर पर 27 लाख वोटर्स के नाम हज़फ किए गए। केरला की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तकरीबन 22 लाख नाम हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में तकरीबन 43 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाने से लोगों में तशवीश देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि 19 लाख से ज़ायद मर्द वोटर्स और 23,64,000 खातून वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। ये भी जानकारी दी गई है कि 8,40,000 से ज़्यादा नामों की मैपिंग नहीं हो सकी। जामिया मिलिया इस्लामिया में एक प्रोफेसर को इसलिए मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इम्तिहान के लिए एक ऐसे सवालनामे को मंजूरी दी जिसमें हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम से जुड़ा हुआ एक सवाल मौजूद था। इस सवाल से ख़ास ज़हनियत के लोग चिराग़पा हो गए और फिर हंगामा जैसा माहौल बनने के बाद जामिया इंतज़ामिया ने मामले की जाँच तक मुतल्लिक़ा प्रोफेसर को मुअत्तल करने का हुक्म सादर किया। मुस्लिम अक़लियतों पर मज़ालिम से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल और प्रोफेसर की मुअत्तली के बाद तुलबा में मिला-जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस बात से हैरान हैं कि निसाब में मुस्लिम अक़लियतों पर मज़ालिम मौजूद है तो सवाल पूछने में क्या दिक्कत है। सोशल मीडिया पर भी प्रोफेसर की मुअत्तली की हिमायत और ख़िलाफ़ दोनों तरह की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है कि ये जायज़ और निसाब पर मबनी सवाल हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट के हामियों में शदीद गम गुस्से का सबब बन गया। इन्होंने फ़ौरन जामे के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी मुहिम शुरू कर दी, जिससे उनके अंदर हक़ाइक़ और इल्मी तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ गहरे अदम तहफ़्फ़ुज़ का पता चलता है। इसमें यह भी लिखा गया है कि तालीमी आज़ादी का दिफा करने की जगह जामे ने अब सोशल वर्क डिपार्टमेंट में तदरीस का अमल अंजाम देने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी को मुअत्तल कर दिया, जो अलमनाक है। आसाम के शोरीज़दा ज़िले कार्बी आंगलोंग में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा है। मंगल को मुजाहिरीन के दो ग्रुपों में तसादुम हुआ। हालात की हिसासियत को देखते हुए कार्बी आंगलोंग और मगरबी कार्बी आंगलोंग अजला में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया।
पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हुक्काम का कहना है कि शटडाउन के हुक्म के बावजूद खेरवानी बाजार के इलाके में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी, जिनकी दुकानों को पीर को मुश्तइल हुजूम ने आग लगा दी थी। मुजाहिरीन खेरवानी बाजार में जमा हुए थे और कबायली इलाके से तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे। कड़ाके की सर्दी और गहरी धुंध के नतीजे में दिल्ली की फ़िज़ा शदीद तरीन सूरत-ए-हाल से दो चार है। ख़राब फ़िज़ा और आलूदा हवा के बाद दिल्ली में हवा का मेयार ख़तरनाक सतह तक पहुँच गया है, जबकि दिल्ली वालों में सांस लेने में तकलीफ़ का सामना है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि गहरी धुंध ने दिल्ली को हवा का मेयार ख़राब कर दिया है, जिसके नतीजे में उनकी आंखों में जलन है, जबकि ज़ईफ़ों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। अस्पताल के ज़राए का कहना है कि हर रोज़ सैकड़ों लोग सांस में तकलीफ़ और फेफड़ों के इन्फेक्शन की शिकायत के साथ अस्पताल से रुजू हो रहे हैं। दिल्ली के मुकामी लोग दिल्ली की बीजेपी की सरकार की बेहिस्सी की शिकायत करते नजर आए। लोगों का कहना है कि इतने संगीन मामले पर हुकूमत की बेहिस्सी अफसोसनाक है। महाराष्ट्र के भिवंडी में वाक़े एक लूम फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से भयानक आग लग गई, जिसमें आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हो गया। ये वारदात चारशंबे के रोज़ अलग सुबह महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के करीब खोनी गांव के सिद्धार्थ नगर इलाके में हुई, जहां अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते इसने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। आग की जद में आकर पूरी लूम फैक्ट्री जलकर खाकिस्तार हो गई, जबकि करीब में वाक़ 3 दीगर लूम फैक्ट्रियाँ भी तबाह हो गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फैक्ट्री में रखे लूम मशीनरी और कपड़े का बड़ा ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अमेरिका के सबसे वजनी ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को ले जाने वाला हिंदुस्तान का हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3M6 शॉर रेंज से कामयाबी के साथ रवाना। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। बीस साल बाद साथ आए ठाकुरे बरादरान। शिवसेना, UBT और मनसे के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान। BMC इंतखाबात में बीजेपी को लग सकता है झटका। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश और केरला समेत 4 रियासतों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। लाखों नाम हटा दिए गए। जामिया मिलिया इस्लामिया में नया तनाज़ा। इम्तिहान में हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम का सवाल शामिल करने पर फ़िरक़ा परस्तों का हंगामा। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मुअत्तल। आसाम के इलाके अंगलोंग में बदतरीन तशद्दुद, 2 हलाक, 40 पुलिस जवानों समेत 50 से ज़ायद जख्मी। विश्वा शर्मा ने अमन की अपील। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।